السلام علیکم ناظرین، 4 TV خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے پیش ہیں ہیڈ لائنز۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، ام کی ٹاورز، پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ کیو میکس فارم ہاؤس، تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ، 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام، صرف ایک نہیں 2 شاندار سوئمنگ پولز، انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز، شادی ہو، انگیجمنٹ، سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی، کیو میکس فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے۔ 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز، ہمارا سپریٹ BBQ سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص، 9 آرام دہ کمرے، 3 بڑے ہالز۔ کیو میکس فارم ہاؤس، آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے، اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت، 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا، FTL اور بفر زون سے پاک پلاٹس، اسپاٹ رجسٹریشن کے ساتھ۔ آرکڈ ریزیڈنسی کی شاندار کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2، بالاپور میں فلی ڈیولپڈ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر، جس میں چلڈرنس پارک، لینڈسکیپ گارڈن اور مسجد جیسی بے شمار امینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2، where life comes alive۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی دہلی میں راہل گاندھی سے ملاقات، نومنتخبہ رکن اسمبلی نوین یادو کا کرایا تعارف، قائد اپوزیشن نے دیے ضروری مشورے۔ بہار اسمبلی انتخابات میں مجلس کی شاندار کامیابی، دارالسلام میں صدر مجلس سے عوام کی ملاقات اور مبارکباد، نوین یادو کے والد کا بھی اظہار تشکر، مختلف مقامات پر جشن۔ KTR کو سوشل میڈیا ترک کرتے ہوئے زمین پر آنا ہوگا، بہن کویتا کا مشورہ۔ BRS کے لیڈرز کو غرور اور تکبر ترک کرنا چاہیے، KTR کو جوبلی ہلز کی شکست پر شرم مانی چاہیے، کانگریس لیڈرز کا رد عمل۔ اور جوبلی ہلز میں مبینہ نشے کی حالت میں خاتون ڈاکٹر نے ڈیوائیڈر کو دی ٹکر، ایکسپریس وے پر بھی کار الٹ گئی۔
निजामाबाद में स्कूल बस के नीचे आकर क्लीनर हलाक। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने हफ्ते को दिल्ली में कायदे पोजीशन लोकसभा राहुल गांधी से मुलाकात की। वजीर आला ने जुबली हिल्स के नौमंतखबा रुकन असम्बली नवीन यादव का राहुल गांधी से तारुफ करवाया। राहुल गांधी ने नवीन यादव को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वजीर आला ने नवीन यादव के हमराह पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल से भी मुलाकात की। इस मौके पर रियासत में पार्टी उमूर के इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन, सदर पीसीसी महेश कुमार गौड़ भी मौजूद थे। जुबली हिल्स हल्के से बीआरएस को हुई शिकस्त पर तेलंगाना जागृति के लीडर और केसीआर की दफ्तर का भी तंजिया रद्द-ए-अमल सामने आया है। मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा कि केटीआर और हरीश राव, जो खुद को कृष्ण और अर्जुन समझते हैं, एक दूसरे के खिलाफ ही तीर बरसा रहे हैं। कविता का कहना था कि कांग्रेस के खिलाफ अवामी बरहमी के बावजूद भी कांग्रेस को कामयाबी मिली। बीआरएस सिर्फ सोशल मीडिया पर लड़ती रही, जमीन पर बीआरएस ने कांग्रेस के खिलाफ नहीं लड़ा। कविता ने बीआरएस के साबिक वज़रा को भी निशाना बनाते हुए कहा कि 2014 में उनकी जो जायदाद थी आज भी वही है, लेकिन जगदीश रेड्डी, मदन रेड्डी, प्रशांत रेड्डी, निरंजन रेड्डी पहले क्या थे और अब क्या हो गए, ये देखना होगा। अपने भाई को मशवरा देते हुए कविता ने कहा कि केटीआर को सोशल मीडिया तर्क करते हुए जमीन पर आना होगा। हरीश राव को भी तय करना होगा कि वो कृष्ण है या अर्जुन। कविता ने कहा कि जब केसीआर आएंगे सब कुछ बदलेगा, लेकिन केटीआर और हरीश राव उन्हें सामने आने नहीं दे रहे हैं। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने रहमतनगर में पार्टी के कारकुन राकेश से उनके क़यामगाह पर मुलाकात की। मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने कहा कि जुबली हिल्स के इंतखाबी नतीजे के 24 घंटे के अंदर ही कांग्रेस की गुंडागर्दी शुरू हो गई है। 10 साल हम इख्तिदार पर रहे, हमने भी कई ज़िमनी इंतखाबात जीते, लेकिन हमारे कारकुनों ने कभी कांग्रेस के किसी कारकुन पर हमला नहीं किया। रियासत की अवाम कांग्रेस की बदमाशी को देख रही है। केटीआर ने दावा किया कि हम पार्टी कारकुनों की आंख के तारे की तरह हिफाजत करेंगे। केटीआर ने मुतालबा किया कि कांग्रेस पार्टी को बीआरएस कारकुन पर हमले की जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस ने वोट चोरी, गुंडागर्दी और रकम खर्च करके इलेक्शन जीता है। केटीआर ने कहा कि अगर कांग्रेस अपनी गुंडागर्दी खत्म नहीं करेगी तो अवाम ही इससे सबक सिखाएंगे। उन्होंने कहा कि पिछले इलेक्शन में जुबली हिल्स से हमें 80,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। इस बार धांधलियों, पैसों की तकसीम के बावजूद भी बीआरएस ने 75,000 वोट हासिल किए। हम फिर इस हल्के से कामयाबी हासिल करेंगे। इससे पहले बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने जुबली हिल्स के इंतखाब में शिकस्त से 2-4 पार्टी की उम्मीदवार एम सुनीता से उनके क़यामगाह पहुंचकर मुलाकात की थी। केटीआर ने इस मौके पर एम सुनीता से कहा कि सियासत में कामयाबी और नाकामी आम बात है, पार्टी उनके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। केटीआर ने इंतखाब के दौरान एम सुनीता के हौसले की भी सताइश की। तेलंगाना कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सी दियाकर ने कहा है कि जुबली हिल्स से नवीन यादव की कामयाबी को रेवंत रेड्डी की कामयाबी की तरह देखना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए दियाकर ने कहा कि तेलंगाना में 10 साल तक कांग्रेस का इख्तिदार पर रहना यकीनी है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में पार्टी में नौजवानों को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। जुबली हिल्स के नतीजे से यह वाज़ेह हो गया है कि अवाम का कांग्रेस हुकूमत की फलाही स्कीमों पर एतमाद बढ़ गया है। अवाम कांग्रेस की हुक्मरानी को पसंद कर रहे हैं। दियाकर ने कहा कि बीआरएस के लीडर्स को गुरूर और तकब्बुर तर्क करना चाहिए। केसीआर को कांग्रेस कायदीन से ज़्यादा अपने ख़ानदान की फिक्र करनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि बलदियाती इंतखाबात में भी ऐसे ही नताइज आएंगे। दियाकर का कहना था कि कांग्रेस के इख्तिदार में आने के बाद बीसी तबके की इज्जत व एहतराम में इजाफा हुआ है। गवर्नमेंट व्हिप आदि श्रीनिवास ने कहा कि जुबली हिल्स के इंतखाब में शिकस्त के बावजूद केटीआर के तकब्बुर में कोई कमी नहीं हुई है। मीडिया से बात करते हुए आदि श्रीनिवास ने कहा कि अवाम के वोट देने के बाद के 12 घंटे से भी कम वक्त में मीडिया के दरमियान आकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने की कोशिश की गई। जुबली हिल्स में शिकस्त खाने के बावजूद भी केटीआर को शर्म नहीं आई। सोशल मीडिया पर झूठे प्रोपेगेंडा और जाली सर्वे के जरिए माइंड गेम खेलने के बाद भी अवाम ने कांग्रेस के हक में वोट दिया। उन्होंने कहा कि असेंबली इंतखाबात में बीआरएस को शिकस्त हुई, पार्लियामेंट के इंतखाबात में एक भी नशिस्त नहीं मिली। कंटेनमेंट के बाद अब जुबली हिल्स में भी शर्मनाक शिकस्त हुई है। केटीआर को इन नाकामियों का मुहासिबा करना चाहिए। केटीआर की बहन खुद उनसे इस मुतालिक बात कह रही हैं।
बहन ने यह कहा कि गुनाहों की सजा मिली है। KTR अपना अगर मुंह बंद रखें तो उनकी पार्टी चंद साल तक तेलंगाना में जिंदा रह सकती है, वरना KTR के रवैये से पार्टी तबाह हो जाएगी। हुकूमत ने इको टूरिज्म को फरोग देने और बैरूनी सयाहों को राग़िब करने महकमे जंगलात, सयाहत और सनत की आला ओहदेदारों के साथ एक मुश्तरका इजलास तलब करने और बेहतर तजावीज़ को खतियत देने का ऐलान किया है। वज़ीर जंगलात कुंडा सुरेखा ने जायजा इजलास में यह बात कही। रियासती जंगलात को किसी इम्कानी आग से महफूज रखने उन्होंने मुकामी तबकात को मौसर ट्रेनिंग देने पर भी जोर दिया। इसके लिए कम्युनिटी ट्रेनिंग फराहम करने महकमे जंगलात के अहदेदारों को हिदायत दी। तेलंगाना हरितंदी के इजलास में उन्होंने कहा कि रियासत में सयाहत को फ़रोग देने के वसी तर मौक़े हैं। कौमी और बैरूनी सयाहों को राग़िब करने बेहतर सहूलियात के साथ एक लाहे अमल तरतीब दिया जाए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी माहौलियात व जंगलात अहमद नदीम और दीगर आला ओहदेदार इस इजलास में शरीक थे। BRS की रुकन कौंसिल डी श्रवण ने कहा है कि जुबली हिल्स में कांग्रेस की कामयाबी को अवाम की ताईद नहीं है। मीडिया से बात करते हुए डी श्रवण ने कहा कि ज़िमनी इंतखाब में हुक्मरान जमात का जीतना आम बात है। कांग्रेस ने ऐसे ही कई ज़िमनी इंतखाबात में अपनी ज़मानत भी खोई है। वज़ीर आला 15 वज़रा, अरकान मुक़न्नना और कारकुनों ने एक खातून पर जुल्म किया। श्रवण ने इल्ज़ाम लगाया कि एक जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च किए गए। उन्होंने कहा कि बिहार की तरह जुबली हिल्स में भी धांधली की गई। BRS लीडर का कहना था कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को खौफ था कि अगर जुबली हिल्स से कांग्रेस को शिकस्त हो जाती है तो वज़ीर आला के ओहदे से महरूम हो जाएंगे। तेलंगाना हाई कोर्ट की वेबसाइट को मुबैना तौर पर हैक किए जाने की इत्तला है। तफसीलात के मुताबिक साइबर क्राइम पुलिस ने हाई कोर्ट की इंतजामिया की तरफ से शिकायत पर केस दर्ज किया है। बताया जाता है कि tshc.gov.in ऑनलाइन पोर्टल को हैक किया गया। पुलिस की तरफ से मुख्तलिफ दफात के तहत केस दर्ज किया गया है। इस सिलसिले में मजीद तहकीकात जारी हैं। बिहार असेंबली इंतखाबात में मजलिस की शानदार कामयाबी पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को मुबारकबादियों का सिलसिला जारी है। जुबली हिल्स हल्के के उम्मीदवार नवीन यादव के वालिद चिन्नश्री सलम यादव ने दारुस्सलाम पहुंचकर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। नवीन यादव की ताईद पर इज़हार तशक्कुर किया और उनकी शालपोशी और गुलपोशी की। श्री सलम यादव ने मजलिस के अरकान मुक़र्रना से भी मुलाकात करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। शालपोशी और गुलपोशी की। रियासत बिहार में मजलिस की शानदार कामयाबी पर हल्का असम्बली बहादुरपुरा के इलाके तिगलकुंटा चौराहे पर मजलिसी कारकुनों की जानिब से जश्न मनाया गया, जिसमें रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन और हल्के के तमाम डिवीजन्स के अरकान बलदिया ने शिरकत की। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने साबिक़ की तरह इस दफ़ा भी मजलिस को कामयाब करने के लिए रियासत बिहार की अवाम से इज़हार तशक्कुर किया। जश्न में मुकामी अफराद के अलावा मजलिस के इब्तदाई सदूर और मोतमदीन ने भी शिरकत की। बिहार में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी पर रियासत बशमूल दारुल-हुकूमत हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर जश्न मनाया गया। तारीखी चार मीनार के पास रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली की क़यादत में जश्न मनाया गया। मीडिया से बात करते हुए जुल्फ़िकार अली ने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शानदार कामयाबी हासिल की है। रुकन असम्बली ने बिहार की अवाम को भी मुबारकबाद दी। महबूबनगर में भी मुकामी मजलिस की तरफ से बिहार में शानदार कामयाबी पर जश्न मनाया गया। जिले के पार्टी लीडर्स इस मौके पर मौजूद थे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत को खिराज पेश किया गया और केक काटा गया। मजलिसी कारकुनों की तरफ से जुलूस निकालते हुए सदर मजलिस की हिमायत में नारेबाजी की गई। हल्के चंद्रायन गुट्टा ने तालीम के शोबे में एक और तारीख रकम की है। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने हफ्ते को बाबानगर में डॉक्टर नूरुद्दीन ओवैसी एजुकेशनल कैंपस के नए ब्लॉक का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस नए ब्लॉक में अकबरुद्दीन जूनियर कॉलेज, मॉडर्न लाइब्रेरी और कंप्यूटर लैब तलबा के लिए कायम किए गए हैं। यह कैंपस 16,000 स्क्वायर फुट पर मुश्तमिल है। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की जस्तजू से हल्के चंद्रायन गुट्टा में तालीमी इदारों का जाल बिछाया गया है और ये नया कैंपस भी अकबरुद्दीन ओवैसी का एक और कारनामा है। इस मौके पर खिताब करते हुए कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने मुख्तलिफ तालीमी इदारों के क़याम का हवाला दिया। कायद मजलिस ने कहा कि गरीब और यतीम तलबा को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता किया जा रहा है। दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम भी दी जा रही है।
قائد مجلس نے جوبلی ہلز کے ضمنی انتخاب میں مجلس کے موقف پر کہا کہ مجلس کی سیاسی دانشمندی اور طاقت کی وجہ سے ریاست کے حکمراں مجلس کے قریب آئے۔ اکبر الدین اویسی نے بہار میں مجلس کی کامیابی پر بھی بہار کے عوام کو مبارکباد دی۔ اس سے قبل قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے بابا نگر عمر ہوٹل سے اپنے دورے کا آغاز کیا۔ انہوں نے مختلف علاقوں کا احاطہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی۔ قائد مجلس کا مقامی عوام کی طرف سے زبردست استقبال کیا گیا اور ان کی کثرت سے گلپوشی کی گئی۔ اس موقع پر حلقے کے کارپوریٹرز اور مجلس کے کارکن بھی موجود تھے۔ کے جی کا پی جی کا ایک کیمپس کا افتتاح، اسکول کی عمارت کا ہم نے سنگ بنیاد رکھا، جو تالاب میر جملہ مراد محل میں تالاب کٹے ہوئے وہاں پر بھی سنگ بنیاد رکھا، اور آج سے 3 برس پہلے وہاں پر بھی اسکول کا آغاز ہم نے کیا۔ نہ صرف یہ بلکہ آج سے شاید 10 برس پہلے ہم نے بلا گڑے میں بھی سنگ بنیاد رکھا تھا۔ اتحاد المسلمین کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کرتے ہوئے مجلس کو کامیاب کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میرے صدر کو صحت دے، حیات دے، اور ان کے فیصلوں میں اے اللہ تیری رضا کو شامل کر دے، اور ان فیصلوں کی لاج رکھتے ہوئے ان کے فیصلوں کو کامیابی و کامرانی عطا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کے ساتھ دینے والے ہر مجلس کے کارکن جو محنت کرے، کوشش کرے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کرے۔ اللہ سیمانچل کی عوام نے جن امید و توقع کے ساتھ مجلس کو کامیاب کیا ہے، اے اللہ ان کے توقعات میں پورا اترنے کی ہدایت و توفیق ہم کو عطا۔ اے اللہ وہ بے سہارا بیچارے مسلمان ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، پانی میں ڈوبے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے، اے اللہ آج ایک امید سے انہوں نے مجلس کو اپنا ووٹ دیا ہے، اے اللہ ان کے امید پہ پورا اترنے کی توفیق و ہدایت عطا فرما۔ مجلس کے منتخب ایم ایل ایز کو اور سیمانچل کے مجلس کے منتخب ایم ایل ایز کو مبارکباد دیتا ہوں، اور بالخصوص بہار کے صدر، ہمارے صدر جو بہار کے ہیں اختر ایمان صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کامیابی پر، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کی وابستگی جماعت سے رہے گی، جماعت کے فیصلے پہ عمل کریں گے، شخصیتیں آتی رہے گی، جاتی رہے گی۔ اللہ کا کام اور جماعت کا کام کسی کا محتاج نہیں، کل کو میں بھی نہیں رہوں گا تب بھی جماعت کا کام رکنے والا نہیں ہے، جماعت کا کام جاری تھا، جاری ہے اور جاری رہے گا۔ صدر مجلس رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی کی سرپرستی میں رکن اسمبلی احمد بلالہ نے حلقہ ملک پیٹ کے اعظم پورہ ڈویژن میں 3 کروڑ 1 لاکھ روپے کے مختلف ترقیاتی کاموں کی تکمیل کرتے ہوئے ان کا افتتاح انجام دیا۔ کالا ڈیرا پوچامہ مندر، منسیوا سمیتی کی پہلی منزل کی تعمیر، الرحمان مسجد کمال نگر میں سی سی روڈ، کٹل گوڑہ میں سی سی روڈ، رسول پورہ اعظم پورہ کلاک ٹاور، روشن ڈیری فارم، چنچل گوڑہ میں سی سی روڈ، ٹارزن پلے گراؤنڈ میں رین ہارویسٹنگ، میلاد گلی میں سیوریج لائن، وی سی سی روڈ کی تعمیر اور دیگر بلدی کاموں کی تکمیل کا انہوں نے افتتاح انجام دیا۔ ان کے ساتھ جی ایچ ایم سی اور آبرسانی برقی اور دیگر محکمہ جات کے عہدیدار، نمائندہ کارپوریٹر ایس ایم ابرار، مجلس کے ابتدائی ذمہ داران بھی شامل تھے۔ رکن اسمبلی کی عوام نے بکثرت گلپوشی اور شال پوشی کی۔ چنچل گوڑہ کھلا میں مقامی ہندو کمیونٹی کی جانب سے ان کو تہنیت پیش کی گئی اور ان کی خدمات کا اعتراف کیا گیا۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی سرپرستی میں رکن اسمبلی یاقوت پورہ جعفر حسین معراج کی نگرانی میں سیرت محسن انسانیہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریری مقابلے ستمبر میں منعقد کیے گئے۔ ہفتے کو رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے کامیابی حاصل کرنے والے طلباء میں نقد رقم اور سرٹیفکیٹس
तकसीम किए। इस तहरीरी मुकाबले के लिए 51,000, 21,000, 11,000 रुपए इनामी रकम रखी गई थी। 1,100 रुपए के तकरीबन 205 तरगीबी इनामात भी दिए गए। रुकन असम्बली ने कामयाब तलबा को मुबारकबाद दी। मुकामी मजलिस के सदूर मोतमदीन और कारकुन इस मौके पर मौजूद थे। सदर जमियतुल हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद शेख शफीक आलम खान जामई और डॉक्टर सैयद आसिफ उमरी नायब सदर जमियत अहल हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद की निगरानी में 2 रोज़ा रियासती कॉन्फ्रेंस बउनवान इस्लाह माशरा रिफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी का एग्जीबिशन सोसाइटी में इनकाद अमल में आया। कॉन्फ्रेंस में नो टू ड्रग मनशियात के इस्तेमाल के खिलाफ शुरका ने खिताब किया। पुलिस के आला ओहदेदार DSP नारकोटिक्स ईगल सैदुल्लू ने मनशियात की लानत और समाज पर पड़ने वाले बदतरीन असरात से वाकिफ करवाया। कहा कि ड्रग्स मनशियात मुआशरे और समाज के लिए किसी लानत से कम नहीं। ऐसे में हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इस लानत के खिलाफ मुतहरिक हों और समाज को इस बदतरीन बुराइयों नशे से पाक समाज की तश्कील में अपना किरदार अदा करें। वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों से मोहब्बत खुलूस के साथ बात करें और उनके मसाइल के हल पर तवज्जो दें। मनशियात के खात्मे के लिए शुरका को हलफ दिलाया गया। तेलंगाना वक्फ बोर्ड में कामकाज ठप होकर रह गया है। दूरदराज के इलाकों से अवाम वक्फ बोर्ड के दफ्तर आते हैं, लेकिन काम न होने से उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ता है। अरसे से सदर नशीन की अदम दस्तियाबी से भी कई फाइलें ज़ेर इल्तिवा हैं। अवाम ने सदर नशीन वक्फ बोर्ड से सिलसिले में तवज्जो देने की अपील की है। छतरीनाका पुलिस की जानिब से साइबर क्राइम की शऊर बेदारी के लिए एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर श्रद्धा विद्यालय तक रैली निकाली गई, जिसमें तलबा के अलावा मुकामी अफराद ने हिस्सा लिया। DCP साउथ जोन स्नेहा मेहरा ने प्रोग्राम के बारे में तफसीलात बताईं। उन्होंने अवाम से सरगर्मी से हिस्सा लेने पर इज़हार तशक्कुर किया और छतरीनाका पुलिस की सताइश की। DCP ने रैली के दौरान अवाम से बातचीत की और मुख्तलिफ साइबर फ्रॉड्स की तशरीह की। उन्होंने साइबर क्राइम्स की बर वक्त पुलिस से शिकायत करने की अहमियत के बारे में भी तफसीली रोशनी डाली। प्रोग्राम में छतरीनाका के ACP इंस्पेक्टर और स्टाफ के अलावा दीगर ने भी शिरकत की। नामपल्ली पुलिस हदूद में मुख्तलिफ कॉलेजेस के तलबा की जानिब से साइबर क्राइम की शऊर बेदारी के लिए एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। प्रोग्राम में मुख्तलिफ कॉलेजेस, तपस्या कॉलेज, ITI कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज के करीब 400 तलबा ने हिस्सा लिया। DCP सेंट्रल जोन पुलिस ने मीडिया को बताया कि पूरे शहर में ऐसे प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जा रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने साइबर क्राइम से बचने के तरीके बताए। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में सीनियर सिटीजन, नौजवान और घरेलू खवातीन को साइबर क्राइम्स के बारे में शऊर बेदारी की गई। उन्होंने बताया कि मंगल और हफ्ते के दिन शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि किसी भी मुश्तबा लिंक और ऐप को डाउनलोड न किया जाए। प्रोग्राम में ACP इंस्पेक्टर और स्टाफ के अलावा मुकामी अफराद ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। बहादुरपुरा चौराहे के पास नशे की हालत में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। अक्सर इस तरह की तलाशी मुहिम के दौरान शराबियों और पुलिस के दरमियान दिलचस्प नोक-झोंक के मनाजिर देखे जाते हैं। ऐसा ही एक मंजर जुमा की रात भी देखा गया, जब एक शख्स की ब्रीथ एनालाइजर के जरिए जांच की जा रही थी। वो पुलिस अमले से सवाल करने लगा कि शराब की दुकानों को पहले बंद किया जाए। पुलिस मुलाजिम का कहना था कि यह तलाशी मुहिम आपकी जिंदगी और सेहत के लिए की जा रही है, आपने शराब क्यों पी है? इस पर शराबी शख्स ने फिर वही बात दोहराई कि शराब खाने क्यों खुले हैं, आप गवर्नमेंट के लोग हैं, हमें क्यों पकड़ा जा रहा है? इसने फिर मुतालबा किया कि पहले शराब खाना बंद किया जाए। फिल्मों की क़ज़ाक़ी और इसे गैर कानूनी तरीके से अपलोड करने वाली बोम्मा वेबसाइट चलाने वाले सरगना रवि को साइबराबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक रवि को शमशाबाद एयरपोर्ट पर गिरफ्तार करते हुए अदालत में पेश कर दिया गया है। बताया गया है कि रवि तेलुगु फिल्मों की क़ज़ाक़ी करते हुए इसे वेबसाइट पर अपलोड किया करता था और इसे तेलुगु फिल्म साजों को नुकसान पहुंच रहा था। निजामाबाद की अरसापल्ली ऑटो स्टैंड के पास स्कूल बस की जद में आकर एक क्लीनर हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक काकतिया स्कूल की बस हफ्ते की सुबह
अरसापल्ली जा रही थी। बस ड्राइवर रिवर्स ले रहा था। इसने क्लीनर को नहीं देखा। क्लीनर बस के नीचे आकर बरसरे मौका हलाक हो गया। इत्तला मिलने पर पुलिस मुकाम वाक़या पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। जुबली हिल्स के इलाके में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर बरकी खंभे से टकराकर उलट गई। तफसीलात के मुताबिक मुतासिरा कार खातून डॉक्टर चला रही थी। डॉक्टर को कार से बाहर निकालने के लिए कार के शीशे को तोड़ना पड़ा। जख्मी खातून को दवाखाना मुंतकिल किया गया है। बताया जाता है कि खातून डॉक्टर मुबैना तौर पर नशे की हालत में थीं। हैदराबाद पीवीएनआर एक्सप्रेस हाईवे पर तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर उलट गई। यह हादसा शमशाबाद की सिमत जाने के दौरान पिलर नंबर 25 के पास पेश आया। कार में सवार 3 खातून मुसाफरीन और एक बच्चा हादसे में ताहम महफूज रहे। पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की। मुसाफरीन को मामूली जख्म आए थे और उन्हें हॉस्पिटल से रुजू किया गया है। तेलंगाना के महबूबाबाद जिले के केसामदरम रेलवे स्टेशन पर पटरी अबूर करने के दौरान जब अचानक ट्रेन करीब आ गई, एक शख्स पटरियों पर ही लेट गया। मुकाम वाक़े पर मौजूद लोगों ने इसकी फिल्मबंदी की और इसे पटरियों से न उठने का मशवरा देते रहे। ट्रेन जाने के बाद नौजवान पटरियों से महफूज बाहर निकल आया। गैर कानूनी बेटिंग ऐप के सिलसिले में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के अदाकार राना डागुबटी से खुसूसी तहकीकाती टीम ने पूछताछ की है। वाज़ेह है कि 2 रोज कबल खुसूसी टीम ने कन्नड़ अदाकार प्रकाश राज से भी पूछताछ की थी। इससे कबल भी तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के अलावा दीगर मशहूर शख्सियात से पूछताछ हो चुकी है। लाड़ बाजार के इलाके में वाक़े अलहसनात कॉम्प्लेक्स के पार्किंग सेलर में कचरे में अचानक आग लग गई। इस सिलसिले में मुगलपुरा फायर ब्रिगेड को तलब कर लिया गया। इस मौके पर डीआरएस फायर ब्रिगेड ने कोशिश करके आग बुझा दी। चारमीनार पुलिस ने एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। डीआरएस और पुलिस के मुताबिक लाड़ बाजार को जाने के रास्ते तंग होने की वजह से फायर ब्रिगेड को पहुंचने में मुश्किलात पेश आ रही थीं। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, एमएसएन एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट बीबीक्यू सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है
वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात। नौमंतखबा रुकन असेंबली नवीन यादव का कराया तारुफ। कायदे पोजीशन ने दिए जरूरी मशवरे। बिहार असेंबली इंतखाबात में मजलिस की शानदार कामयाबी। दारुस्सलाम में सदर मजलिस से अवाम की मुलाकात और मुबारकबाद। नवीन यादव के वालिद का भी इजहार तशक्कुर। मुख्तलिफ मकामात पर जश्न। केटीआर को सोशल मीडिया तर्क करते हुए जमीन पर आना होगा, बहन कविता का मशवरा। बीआरएस के लीडर्स को गुरूर और तकब्बुर तर्क करना चाहिए। केटीआर को जुबली हिल्स की शिकस्त पर शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस लीडर्स का रद्दे अमल। और जुबली हिल्स में मुबैना नशे की हालत में खातून डॉक्टर ने डिवाइडर को दी टक्कर। एक्सप्रेस वे पर भी कार उलट गई। निजामाबाद में स्कूल बस के नीचे आकर क्लीनर हलाक। और नाज़रीन के साथ 4TV खबरनामे का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद हुसैन मतीन को पूरी टीम के साथ इजाजत। देखते रहें 4TV। खुदा हाफिज।